Hello everyone. So we are starting a new chapter today, that is chapter number 15, Introduction to Polymer Chemistry. Okay. So in this chapter we will study about the polymers. What are the polymers? What classification of polymer, types of polymers. Okay. Uh, Before going to the classification and definition of polymers, we first discuss the biomolecules. Okay, what are biomolecules? Biomolecules are nothing but the types of polymers. Okay, naturally occurring polymers. Biomolecules, example of biomolecules are nucleic acid, amino acids, and there are various biomolecules present which are nothing but the polymers. Okay, so what the uh, polymers means, basically polymers mean many units. Okay, see, poly means many, mers means unit, तो polymers का मतलब होता है many units. Okay, and और हम पॉलीमर्स को बोल सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल. ओके, मैक्रोमोलिक्यूल्स मीन्स अ बिग मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट. ओके, मैक्रोमोलिक्यूल इज अ बिग मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ smallest unit or a micromolecule. Micromolecule means single unit. Okay, and macro means bigger. Okay, so polymers is made up of single unit. Okay, single identical units. Okay, so you can see in your surroundings, so you can see your surrounding, everything which you are using is made up of polymers. Okay, you can call polymers plastic, papers, pen, whatever you are using is nothing but a polymer, synthetic polymers. Okay, so in classification we will see the naturally occurring polymer, synthetic polymer. Okay, today the overall development in polymer science and technology has enriched human life. The world would be a totally different place without polymers such as artificial fibers. Okay, plastics and elastomers. From the throwaway candy wrappers to the artificial hurt, polymers touch our lives as does no other class of material. Okay, मतलब हर एक चीज़ जो है, प्लास्टिक से ले लो, आप पेन ले लो, पेपर ले लो, हर चीज़ जो है कुछ नहीं है, वो पॉलीमर है. जो लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज होते हैं उसको हम सिंथेटिक पॉलीमर्स बोलेंगे. ओके, केमिकली पॉलीमर्स आर कॉम्प्लेक्स giant macromolecules. Macro means big. Okay, made from repeating units which are divided from small molecules called monomers. Okay, monomers and polymers. मोनोमर सिंगल यूनिट, अगर उसको हम डिवाइड करेंगे, मोनोमर्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, पॉलीमर्स को हम मोनोमर्स में डिवाइड करके मोनोमर्स में बना सकते हैं, लेकिन मोनोमर्स जो है फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, वो जो है लास्ट यूनिट होगा. ठीक है, मोनोमर्स. द टर्म पॉलीमर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड पॉली. पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट और यूनिट. ओके, so monomers are combined to form polymers. Interlinking of many unit constitutes polymers. So the reaction by which the monomers are interlinking or monomers are combining is called polymerization. Okay, the reaction is called polymerization. वो reaction भी हम इस chapter में देखने वाले हैं. In this chapter we will consider mainly man-made organic polymers. इस चैप्टर में जो है हम मैन-मेड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स देखेंगे. मैन-मेड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स. ओके, विथ रेफरेंस टू एस्पेक्ट सच एज टाइप्स, प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन. तो सबसे पहला जो आएगा क्लासिफिकेशन होगा, टाइप्स होगा पॉलीमर्स का, फिर एप्लीकेशन क्या क्या होता है. तो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल स्कोरिंग चैप्टर है. इसमें आपको बड़े बड़े मैकेनिज्म, बड़ी बड़ी रिएक्शन नहीं देखना है, सिंपली 2-3 टाइप के रिएक्शन देखना है, एडिशन, कंडेंसेशन, ओके, एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, इस तरह से. और मोस्टली जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस चैप्टर में आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं पॉलीमर्स के. ओके, मोनोमर्स के एग्जाम्पल याद रखने हैं, सिंपल यूनिट क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होगा,
माइक्रोमोलिक्यूल क्या होता है उसका, ठीक है। एग्जाम्पल आप ले लो न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है, डीएनए का, आरएनए का एग्जाम्पल ले लो। तो उसमें जो होता है यूनिट क्या होता है उसका, सिंगल यूनिट क्या होता है, अमीनो एसिड का एग्जाम्पल ले लो, प्रोटीन का एग्जाम्पल लिया, प्रोटीन का एग्जाम्पल लिया तो उसमें जो अमीनो एसिड्स है वो प्रोटीन का माइक्रोमोलिक्यूल है, यस, ओके। प्रोटीन पॉलीमर है, ओके, और वो रिपीटिंग यूनिट जो है उसमें उसको हम मोनोमर बोलेंगे, तो वो अमीनो एसिड मोनोमर होगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको उसका मोनोमर इम्पॉर्टेंट है याद रखना, मोनोमर, और उसी मोनोमर को हमको डिफरेंट रिएक्शन से कंबाइन करके पॉलीमर फॉर्म करने होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट एग्जाम्पल है। बायोमोलिक्यूल्स में भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। बायोमोलिक्यूल सेल्यूलोज है, स्टार्च है, प्लांट से जो हमको मिलेंगे, ओके, एनिमल्स से जो हमको मिलेंगे वो अलग है। तो इस तरह से इसको क्लासिफिकेशन किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, ओके। पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड in a number of way on the basis of their source, chemical structure, mode of polymerization, molecular force, types of monomers and biodegradability. Yes, polymers are classified in different ways, okay. The first one is on the basis of source and the origin. अब उसका सोर्स क्या है, पॉलीमर्स कहाँ से ओरिजिनेट है, कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पॉलीमर्स को 3 वे में क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट इज अ नेचुरल पॉलीमर, सेकेंड सिंथेटिक एंड थर्ड वन इज सेमी सिंथेटिक। सी बेस्ड ऑन सोर्स एंड ओरिजिन, ये डिफरेंट वेज है क्लासिफिकेशन के लिए, बेस्ड ऑन सोर्स एंड ओरिजिन, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, based on intermolecular forces, based on mode of polymerization, number of monomers and biodegradability. नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर जो है, हम नेचुरल पॉलीमर ऐसे पॉलीमर से जो लैब में सिंथेसाइज नहीं करते, हम डायरेक्टली कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, नेचुरली, ओके, एनिमल से, प्लांट से। देन सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर जो है हम टोटली लेबोरेटरीज में इसको हम फॉर्म करेंगे, तो इसको हम सिंथेटिक पॉलीमर बोलेंगे। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी मीन्स आधा जो है नेचुरल होगा उसमें हाफ पार्ट, और कुछ पार्ट जो होगा सिंथेटिक पार्ट होगा। तो ये दोनों को कंबाइन करके, नेचुरल मॉलिक्यूल को और सिंथेटिक मॉलिक्यूल को कंबाइन करके एक कंप्लीटली न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे लीनियर, ब्रांच, ओके, एंड क्रॉस लिंक। एक तो ओके स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर होगा, एक यूनिट होगा, एक यूनिट होगा, दूसरा यूनिट उससे कंबाइन होगा और एक सिंगल स्ट्रक्चर लीनियर चेन फॉर्म करेगा। सेकंड जो होगा ब्रांच होगा, ओके, इसमें 2 से 3 फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, क्रॉस लिंक में ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। बेस्ड ऑन इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कितना वीक बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल के बीच में, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट इसमें क्लासीफाई किया गया मॉलिक्यूल को। इलास्टोमर्स हो गया, फाइबर्स है, थर्मोप्लास्टिक्स है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब अभी हमने पॉलीमराइजेशन को डिफाइन किया, पॉलीमराइजेशन इज द मेथड of combining molecule to form polymers is known as polymerization। तो polymerization में हो गया addition, condensation and reopening, ओके। एडिशन में जो है सिंपली एक मॉलिक्यूल होगा, एक मोनोमर होगा यूनिट, दूसरा मोनोमर अटैच्ड होगा, ऐड होगा, सिर्फ एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल लेंगे। सेकेंड इज कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में 2 मॉलिक्यूल जब 2 मोनोमर कंबाइन हो गए तो कुछ रिमूवल होगा, कुछ मॉलिक्यूल जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो गया एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे, ठीक है, कंडेंसेशन। रिंग ओपनिंग में रिंग स्ट्रक्चर होगा, ओपन होगा फर्स्ट, देन दूसरा वाला रिंग स्ट्रक्चर ओपन होकर अटैच्ड होगा और एक पॉलीमर फॉर्म करेगा। कैप्रोलैक्टम का एग्जाम्पल है इधर, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम आगे देखने वाले हैं। नंबर ऑफ मोनोमर्स, मोनोमर्स में होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स में 2 जो है, अगर 2 मोनोमर है तो आइडेंटिकल मोनोमर हो गए, सेम मोनोमर हो गए, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड हम बोलेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी ने सुना होगा आपने नाम, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें जो है ये होमोपॉलीमर है, इसमें हर एक मोनोमर जो होता है सिमिलर मोनोमर होता है, ठीक है। विनाइल क्लोराइड, ओके। कोपॉलीमर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल आके अटैच होंगे, सो हम कोपॉलीमर। बेकेलाइट का एग्जांपल होगा जिसमें फिनॉल और बेंजल्डिहाइड
जो है कंबाइन होते हैं। तो ये तो अलग अलग यूनिट कंबाइन होके पॉलीमर फॉर्म करते हैं। बायोडिग्रेडेबिलिटी, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इसमें दो क्लासिफिकेशन है इसमें, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में कि कौन सा मॉलिक्यूल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है, कौन सा पॉलीमर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बायोडिग्रेडेबल है, और जो मॉलिक्यूल लॉन्ग टर्म में इन्वायरमेंट में क्या होता है, जल्दी हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते वो मॉलिक्यूल को, ठीक है, वैनिश नहीं कर सकते उस मॉलिक्यूल को, तो उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मॉलिक्यूल बोलेंगे। इसके भी हम एग्जांपल आगे देखेंगे। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन का सिंपल चार्ट है, आपको याद रखना है और हर एक का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, और क्लासिफिकेशन के साथ उसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे आगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट जो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड ओरिजिन। तो फर्स्ट इसमें है नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स में द पॉलीमर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स आर सेड टू बी नेचुरल पॉलीमर्स। सिंपल है डेफिनेशन, नेचुरल पॉलीमर्स है इसमें क्लासिफिकेशन में, ओरिजिन में नेचुरल पॉलीमर्स। ओके, दे आर फर्दर सब डिवाइडेड। ओके, अब नेचुरल पॉलीमर जो है उसको भी डिवाइड किया है, प्लांट पॉलीमर्स, एनिमल पॉलीमर्स। प्लांट से जो ऑब्टेन होते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया लाइनिन, कॉटन, ओके, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट पॉलीमर्स। नेचुरल रबर है उसका एग्जांपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नेचुरल रबर इज अनदर एग्जांपल ऑफ प्लांट पॉलीमर। ओके, एनिमल पॉलीमर्स, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम हेयर ऑफ शिप। ओके, सिल्क हो गया, ये एनिमल पॉलीमर्स है, ठीक है। सिंथेटिक, अब नेक्स्ट जो है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर जो है नाइलॉन है, टेरिलीन है, नियोप्रीन है, सिंथेटिक पॉलीमर है क्या, ठीक है। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब टाइप्स, नेमली फाइबर, सिंथेटिक रबर्स एंड प्लास्टिक। ओके, सिर्फ आपको इसमें इसके एग्जांपल याद रखना है। सिंथेटिक रबर हो गया, ये सब डिवाइड है, सब टाइप्स है इसके, प्लास्टिक्स। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में क्या होगा, दीज आर ड्राइव from natural polymers. These are also called regenerated fibers. Semi-synthetic polymers are used in preparation of non-inflammable photographic films, cinema films and varnishes. Okay, तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स में हमने फर्स्ट इसमें आपको बताया डेफिनेशन, एग्जाम्पल आपको ये सारे याद रखने हो। और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स जो होगा प्लांट पॉलीमर्स से या फिर नेचुरल पॉलीमर्स बोलो आप, और सिंथेटिक पॉलीमर्स को कंबाइन करके प्रिपेयर होगा, ठीक है। ये है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड ओरिजिन। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। Classification of polymers on the basis of structure. Okay, linear or straight chain polymers. First is linear or straight chain polymers. When the monomer molecules are joined together in linear arrangement, the resulting polymers is straight chain polymers. Okay, सिंपल है ये। लीनियर अरेंजमेंट्स आप दिख रहे हैं, ये जो है एक मॉलिक्यूल होगा, दूसरा बॉन्डिंग करके मोनोमर्स, दूसरा मोनोमर्स होगा, तीसरा मोनो, ये जो छोटे छोटे यूनिट आपको दिख रहे हैं वो मोनोमर्स है, ठीक है, सिंगल यूनिट। अब वो मोनोमर्स को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो एक मोनोमर सिंपली जो है कंबाइन होके क्या फॉर्म कर रहा है, आपको सिंपली कंबाइन होके ये एक लीनियर चेन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल है पीवीसी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। सेकेंड है ब्रांच चेन पॉलीमर। ब्रांच चेन पॉलीमर्स में मोनोमर्स हैविंग 3 फंक्शनल ग्रुप्स और ऑलरेडी हैविंग साइड चेन्स गिव राइज टू ब्रांच चेन पॉलीमर्स। फॉर एग्जांपल लो डेंसिटी पॉलीथीन, ब्रांच्ड में ये इस तरह का ब्रांचिंग होगा मॉलिक्यूल में, ठीक है। या आप सिंपली जब हम स्ट्रक्चर, जब हम सिंथेसाइज करेंगे, मॉलिक्यूल का सिंथेसिस पढ़ेंगे, तब आपको लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी मोनोमर्स क्या होते हैं, आप यहाँ पे से सिंपली क्लासिफिकेशन और उसके एग्जाम्पल डेफिनेशन के साथ याद रखना है, ठीक है। तो ब्रांच चेन पॉलीमर्स जिसमें 3 फंक्शनल ग्रुप होंगे, ओके, और साइड चेन होती है ऑलरेडी उसमें, तो ऐसे मॉलिक्यूल कंबाइन होके ब्रांच चेन पॉलीमर फॉर्म करते हैं। थर्ड इज क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंकिंग रिजल्ट फ्रॉम पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स, फॉर एग्जाम्पल बैकलाइट, मेलामाइन। क्रॉस लिंकिंग जो है इस तरह से
ओके, नेटवर्क जैसा बनाएंगे तो हम उसको क्रॉस लिंक पॉलीमर बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल है बैकलाइट। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन इज द रिएक्शन, हमने बताया पॉलीमराइजेशन इज अ फंडामेंटल प्रोसेस बाय विच लो मॉलिक्यूलर मास compounds are converted into high molecular weight compounds by linking together of repeating structural unit with covalent bond। okay, तो ये पॉलीमराइजेशन का डेफिनेशन है। पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द मोनोमर्स कंबाइन, ओके, बाय विच द मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर्स। तो फर्स्ट जो है इस बेसिस पे इसका अगर सब डिवाइड हम उसको सब टाइप देखें तो एडिशन पॉलीमराइजेशन से अगर जो जा रहा है तो एडिशन पॉलीमर्स है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से जो फॉर्म हो रहा है वो कंडेंसेशन पॉलीमर्स है। एंड थर्ड वन इज रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। तो जो रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन से फॉर्म हो रहा है वो ये इसका एग्जाम्पल कैप्रोलैक्टम वाला एग्जाम्पल हम लेंगे। ओके, तो फर्स्ट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स by addition of monomers without loss of any small molecule। एडिशन में क्या होगा, सिंपली अगर डबल बॉन्ड है, एल्कीन है फॉर एग्जाम्पल, तो डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड ब्रेक होगा एंड न्यू मॉलिक्यूल ऐड होगा। ओके, तो ये जो रिएक्शन है ये मैकेनिज्म रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हो जाता है। फर्स्ट स्टेप इसमें है चेन इनिशिएशन। ओके, अगर पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है एल्कीन के तो इनिशिएटर चाहिए हमको, कैटालिस्ट चाहिए, इनिशिएटर चाहिए, तो हम डिफरेंट इनिशिएटर यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ठीक है, पर ऑक्साइड इनिशिएटर यूज़ करते हैं। चेन इनिशिएशन स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2 इज चेन प्रोपोगेशन एंड स्टेप 3 इज चेन टर्मिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएशन क्या होता है, ये पर ऑक्साइड जो होगा रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये बॉन्ड ब्रेक होके एक 2 यूनिट देगा रेडिकल के। ओके, ये मॉलिक्यूल पे मोनोमर पे अटैक करके रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। ओके, तो इसमें से अल्कीन में पॉलीथीन का एग्जांपल लेंगे तो पॉलीथीन में क्या होता है, इथीन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जब एक इथीन मॉलिक्यूल, एक इथीन मोनोमर, एक इथीन मॉलिक्यूल कंबाइन होता है दूसरे इथीन मॉलिक्यूल से, इसी तरह से रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती है और एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो उसको हम पॉलीथीन बोलेंगे। ओके, तो ये इसी से मैकेनिज्म से हम फॉलो करेंगे। लो डेंसिटी हाई डेंसिटी के लिए अलग मैकेनिज्म है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब पॉलीथीन का एग्जांपल आपको याद रखना है। इधर रेडिकल जो है फिर से यहाँ से कंबाइन होगा इससे, क्योंकि इसको इनिशिएट करना है रिएक्शन को। ओके, एंड यहाँ पे रेडिकल फॉर्म हो रहा है। देखो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन पर एक रेडिकल डॉट देना है आपको और सेकेंड डॉट इस कार्बन पे आएगा। ओके, अब चेन जो होती है इंक्रीज होना है, हमको चेन को इंक्रीज करना है, पॉलीमर बनाना है, तो चेन प्रोपोगेशन रिएक्शन होगा। ये सेकेंड यूनिट आ रहा है, फिर से इसको सेकेंड यूनिट को ये ले रहा है और इस तरह से यहाँ पे अभी 2 कार्बन ऐड हो रहे हैं, फिर से न्यू मॉलिक्यूल आके नंबर ऑफ कार्बन 4 कर रहा है। ठीक है, फिर एक और मॉलिक्यूल ऐड होगी, ऐसे हमको जितना बड़ा मॉलिक्यूल चाहिए उतना हम रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब चेन टर्मिनेशन, हमको चेन अब रिएक्शन को स्टॉप करना है। ओके, रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए अगर सेम मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे तो रिएक्शन क्या होगी, चलती रहेगी और स्टॉप रिएक्शन को करना, टर्मिनेट करना डिफिकल्ट होगा। तो फिर से हम एक कैटालिस्ट के तौर पर लेंगे इसको। ओके, जो चेन को टर्मिनेट करेगा उसको हम चेन टर्मिनेटर बोलेंगे और टर्मिनेशन प्रोसेस होगा ये। तो ये इस तरह के मॉलिक्यूल जो होंगे कंबाइन होके, दोनों मॉलिक्यूल कंबाइन होके इस तरह का स्ट्रक्चर देंगे। ठीक है, तो ये टर्मिनेशन, फर्स्ट इज इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन। ओके, कंडेंसेशन में हमने क्या बताया था फर्स्ट कि कंडेंसेशन में जो है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, देखो ये रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो एक मॉलिक्यूल नंबर ऑफ H2O, n नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं पॉलीमर प्रोसेस के फॉर्म में। तो 2 मॉलिक्यूल जब 2 सिंगल मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल कब जब भी कंबाइन होंगे तो एक स्मॉल स्पीशीज, एक स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ऐसे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स बोलेंगे। कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन और पॉलीईस्टर पॉलीमर्स फ्रॉम इथिलीन ग्लाइकॉल एंड ट्रिप्थैलिक एसिड। ओके, इथिलीन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर, ओके, अल्कोहल है CH2CH2OH एंड ट्रिप्थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपको मोनोमर्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके,
तो इस तरह से आगे भी जितने स्ट्रक्चर आ रहे हैं वो सारे आपको एग्जाम्पल के साथ याद रखना है। ओके, नाउ जब ये रिएक्शन होगा तो क्या कहाँ से कंबाइन हो रहा है मॉलिक्यूल, सी CH2 ओके, इधर ये मॉलिक्यूल जो है इस तरह से मिल रहा है। ओके, यहाँ से हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन को आप हटा देंगे तो ईस्टर लिंकेज मिलेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल मिला है वो एक मोनोमर है। इसे बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन होके इस तरह से कंबाइन होके पॉलीमराइजेशन देंगे। ओके, पॉलीमर देंगे। In this type of polymerization, the chain in growth occurs by series of condensation steps. Therefore, it is also referred to as step growth polymerization. This process is continued until a high molecular mass polymer is obtained. ठीक है, ये प्रोसेस जो है तब तक चले रहेगा जब तक इसका हमको पॉलीमर नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ये मोनोमर है उसका, ये क्या है, मोनोमर है। और ये दो मॉलिक्यूल कंबाइन होके फर्स्ट मोनोमर फॉर्म कर रहे हैं। इस तरह से बहुत से मोनोमर आके कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं। ठीक है, टेरिलीन का है पॉलीमर बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, सी cyclic compounds like lactam, cyclic ether, lactones, etc. polymerize by ring opening polymerization. For example, polymerization of E-caprolactam. यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, C डबल बॉन्ड वो NH2 है और इस तरह से रिंग है। फंक्शनल ग्रुप की जो बाजू सेकंड नंबर वाला जो कार्बन है यहाँ से करेंगे नंबरिंग, अल्फा बीटा। ओके, इस तरह से नंबरिंग होगा। तो ये रिंग ओपन होगा फर्स्ट और फिर मॉलिक्यूल जो है दूसरे मोनोमर से, ये वाला मोनोमर सेकेंड मोनोमर से कंबाइन होके पॉलीमर देगा। ठीक है, सी ऑफ कैप्रोलैक्टम रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन प्रोसीड्स बाय एडिशन ऑफ सिंगल मोनोमर, ओके, सिंगल मोनोमर यूनिट टू ग्रोइंग चेन मॉलिक्यूल। इन दिस सेंस ring opening polymerization is a step growth polymerization similar to condensation polymerization. इसी तरह से पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा और पॉलीमर फॉर्म होगा। ओके, सिंपली आपको याद रखना है। तो तीन टाइप्स है इसमें, एडिशन, कंडेंसेशन एंड रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। यस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स। तो फर्स्ट जो है कितने मोनोमर्स है, उसमें टाइप्स क्या है मोनोमर्स का, होमोपॉलीमर्स। ओके, अभी नंबर ऑफ मोनोमर्स मतलब क्या, होमोपॉलीमर्स है एंड कोपॉलीमर्स है। तो होमोपॉलीमर्स में द पॉलीमर्स विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट आर कॉल्ड होमोपॉलीमर्स। ओके, इसमें टाइप 1 रहेगा। जैसे इथीन है तो इथीन ही रिपीट हो रहा है, उसमें कोई नया मॉलिक्यूल जो है ऐड नहीं हो रहा है। ओके, तो हम इसको होमोपॉलीमर बोलेंगे। इथीन मॉलिक्यूल है तो पूरे अगर पॉलीमर में देखेंगे, पॉलीथीन के स्ट्रक्चर में अगर हम उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे स्ट्रक्चर को, तो इथीन ही मॉलिक्यूल है, इसमें कोई भी नया मॉलिक्यूल ऐड नहीं हो रहा, तो उसको हम होमोपॉलीमर बोलेंगे। लेकिन टेरिलीन का स्ट्रक्चर में हमने देखा कैप्रोलैक्टम था, यस, एंड इथिलीन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर था, सी, एंड ट्रिप्थैलिक एसिड था। ये दो यूनिट है डिफरेंट जो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ये कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। ठीक है, homopolymers usually they are formed from single monomer. In some cases the repeating unit is formed by condensation of two distinct monomers. Okay, sorry इस ये भी जो होगा, अगर ये है मोनोमर, यही मोनोमर रिपीट हो रहा है, सेम मोनोमर रिपीट हो रहा है, ये भी एग्जाम्पल होमोपॉलीमर का है, क्योंकि ये दो यूनिट कंडेंस होके एक मोनोमर फॉर्म कर रहे हैं। दिस मोनोमर इज रिपीटिंग और ये वाला मोनोमर सेम है, तो इसको भी हम होमोपॉलीमर में ही रखेंगे। ओके, देन पॉलीथीन, इसके एग्जाम्पल आप समझेंगे आगे जब हम मैकेनिज्म करेंगे। यस, कोपॉलीमर्स, द पॉलीमर्स विच हैव टू और मोर टाइप्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स आर कॉल्ड copolymers. They are formed by polymerization of two or more different types of monomers in presence of each other. The different monomer units are randomly sequenced in copolymer. For example, Buna S, Buna N. ये रबर का जब आप एग्जाम्पल देखेंगे इसमें है। ठीक है, Buna S, Buna N क्या होता है, सल्फर ऐड करने से क्या होता है, ये सारे रबर के एग्जाम्पल है। नेचुरली अकरिंग रबर अलग है, वो नेचुरल क्लास में है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन
ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इलास्टोमर्स है फर्स्ट। इलास्टोमर्स क्या होता है? इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय विच सब्सटेंस गेट स्ट्रेच्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड रिस्टोर्स इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिलीज ऑफ द फोर्स। ये रबर में होगा, है ना। इलास्टिसिटी किस में होती है? रबर में। तो ये इलास्टोमर्स जिसमें इलास्टिसिटी होगी। ओके। फाइबर्स क्या होते हैं? पॉलीमेरिक सॉलिड्स विच फॉर्म थ्रेड्स आर कॉल्ड फाइबर्स। द फाइबर possess high tensile strength which is property to have resistance to breaking under tension. This characteristic due to strong intermolecular forces like hydrogen bonding and strong dipole फाइबर्स में जो होगा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा। ठीक है। नाइलॉन का एग्जांपल ले लो, पॉलीअमाइड्स, पॉलीस्टर। ओके। थर्ड है सी, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। Plasticity is a property of being easily shaped or molded. Okay, thermoplastic polymers are capable of repeated softening on heating and hardening on cooling. These polymers are possess moderately strong intermolecular forces that are intermediate between elastomers and fibers. For example, polyethylene, polystyrene, polyvinyls. Okay, जितने भी आप टॉयज देखेंगे मोस्टली जो है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स यूज होता है उसमें। इलास्टिक जो है रबर्स, जो है इलास्टिसिटी रबर्स से होती है। ठीक है। फाइबर्स में आप स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर, वो इजीली ब्रेक नहीं होंगे फाइबर्स। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन है। ओके। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी। कौन सा मॉलिक्यूल जो है स्टे करता है इन्वायरमेंट में फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, और कौन सा मॉलिक्यूल जो है इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है अफेक्ट होता है। तो इस बेसिस पे हम उसको बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्लासीफाई करेंगे। ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय माइक्रोब्स। These are called non-biodegradable polymers. These in the form of waste material which stays in the environment for very long time and possess pollution hazards. Most natural fibers, in contrast, are biodegradable. In attempt to tackle the environmental problem, scientists have developed biodegradable synthetic polymers. Okay, तो biodegradable polymer ही हमारे लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। देखो ये आइसोप्रीन यूनिट है, 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन किस में होता है? नेचुरल रबर में। मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन यूनिट। ये रिपीट हो रहा है सी। ओके। अब इसकी जो है हमको स्ट्रेंथ बढ़ानी है घटानी है, तो उसमें डिफरेंट प्रोसेस करते हैं, उसको हम वेल्केनाइजेशन बोलते हैं। सल्फर ऐड करते हैं इसमें से। ओके। The process by which network cross-link is introduced into the elastomers is called vulcanization. तो क्लासिफिकेशन आपको क्लासिफिकेशन तो यहीं पे एंड होता है। ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर से कि फर्स्ट जो आता है इम्पॉर्टेंट पॉलीमर जो है फर्स्ट रबर है, जो इलास्टोमर्स में हमने उसको क्लासीफाई किया गया था। नेचुरली अकरिंग रबर में आइसोप्रीन यूनिट होता है। ठीक है। तो ये जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एप्लीकेशंस और प्रोसेस हम देखेंगे। ओके। थैंक यू।